ज्योतिर् यथैवोदक पार्थिवेश्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। ज्योतिः यथा एव उदक पार्थिवेषु अधः समीरवेग अनुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेषु असौ पुमान् गुणेषु राग अनुगतः विमुह्यति। यथा, just like यथा, अधः ज्योतिः, और एल्स अधः समीर वेगानुगतम ज्योतिः उदक पार्थिवेषु विभाव्यते एवं असौ पुमान्, और एवं असौ रागानुगतः पुमान् स्वमाया रचितेषु गुणेषु विमुह्यति। It means just like yatha, here jyoti means moon, sun, or even the sunlight, moonlight, stars. So such jyoti, um, samir veganugatam udaka parthiveshu vibhavyate. So just like, let's say there is a pond, uh, maybe a big or a small water reservoir, lake, pond, something, maybe a well, maybe a pot full of water. And if there is a reflection of sun, let's say, or moon in that water reservoir, so when there is the air flowing and the water also starts flowing, starts moving by that air. So it resembles as if that sun or the moon or the star is moving, right? When the water starts waving, moving, so the reflection also starts moving, starts shaking. So looks like the original sun, moon, the luminary is vibhavyati, is shaken. Similarly, asau raganugatah puman. So the living entity, the soul, which is under the influence of attachment, illusory caused by the illusory energy, raganugatah. He also similarly gets bewildered, vimunyati, in the modes of nature, guneshu, which are the product of Krishna's illusory energy, Krishna's energy, Swamaya Rajitesha. Translation says, when the luminaries in the sky, such as moon, sun, and the stars, are reflected in liquids like oil or water, they appear to be of different shapes, sometimes round, sometimes long, and so on, because of the movements of the wind. Similarly, when the living entity, the soul, is absorbed in materialistic thoughts, he accepts various manifestations as his own identity because of ignorance. In other words, one is bewildered by mental concoctions because of agitation from the material modes of nature. So these translations are actually bhavanuvad. They are not literal translations. They are bhavanuvad and they are purely based on Bhaktisiddhanta Prabhupada's translations of Bhagavatam. So literally in the shloka, there are not many things which have come in the translation. So like this mental concoction and all, it's not there in the verse. But because this is Bhavanuvad, so it's there. So like that.
Okay, anything? Yes, Prabhuji. Prabhuji, Prabhuji, can you repeat this, which is not literal translation of the sloka? Yes. So, for example, if you see the translation, um, like it says, when the luminaries in the sky, such as the moon, sun, and the stars. So this moon, sun, and stars, it's not there in the shloka. The shloka just says Jyoti, like, and the translation has said luminaries, so that was like equivalent of Jyoti. So sun, moon, stars is expanded translation. Similarly, this oil, water is also not there literally. It just says Udaka Parthiveshu. Then they appear to be of different shapes. Vibhavyate, Vibhavyate literally means causing to appear. It something which resembles something. So here, uh, to appear in different shapes. So this now the expanded translation says round, long, and so on. It's not there in the verse. Round, long. Vibhavyate literally means something appearing like something, resembling something. Then similarly, when the living entity is absorbed in materialistic thoughts, he accepts various manifestations as his own identity. This is also as his own identities. mm, Expanded translation because of ignorance in the yeah. So like that, some things which are not there in the verse, the translations has it because that's called bhavanuvad. It must be there in the commentaries and all. So the acharyas they club many things so that the shloka may sound clear. Yes, Manas Prabhu. प्रभुजी अहं ज्ञातुमिच्छामि अ, अस्मिन् अस्मिन् यथा ज्योतिर् एव उदक पार्थिवेषु अधः। भवतः ध्वनिः सम्यक् रूपेण आगच्छति न आगच्छति प्रभुजी अब इदानीं इदानीम् आगच्छति आगच्छति सम्यक् रूपेण आम् आमां सम्यगेव अ, अस्मिन् यथा ज्योतिर् एव उदक पार्थिवेषु अधः। पार्थिवे इदानीं तु सम्यक् रूपेण आगच्छति यर्हि भवान् माइकस्य फ्रंट अग्रतः वदति तर्हि एव आगच्छति इदानीम् आम् आगच्छति अस्मिन् ज्योतिर्यथा एव उदक पार्थिवेषु अधः। पार्थिवेषु किमर्थम् अथवा अधः किमर्थम्? अधः इदानीम् आङ्ग्ले भाषे डौन् अस्ति। न न न अधः एतत् अधस् कृष्णनामः अस्ति अधस् शब्दः कृष्णनाम अस्ति पुल्लिङ्ग्। अत्र असौ अमु अमि अधः इति तु नपुंसकलिङ्ग् ब्रह्मलिङ्गशब्दः 1.1 आम् आम् ओके। आङ्ग्ले भाषे in in it directly it is translated किन्तु कस् किन्तु व्याकरणे अधः इति इट् इट् यः और वः ओके फिर भी अधः समीरवेगानुगतम् हम्म वेगानुगतं शब्दस्य कृष्णनाम अस्ति अधः अधः समीरवेगानुगतम् इत्यादि
मतलब कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है एक तरह से। आम। अदर्स, ओके। ब्रह्मलिंग। प्रभु जी, पर जो अदा होता है डाउन, वो भी सिमिलर शब्द होता है, हमें वो कॉन्टेक्स्ट वो देखना पड़ेगा। वो अधः होता है, DH। ओके, द होता था, ओके ओके, ठीक है। एंड पार्थिव नाम किमर्थम? पार्थिव इति पृथिव्याः यत्किमपि उत्पादः तत् पृथ्वी संबंधी इति पार्थिव। ओके, लाइक इन तद्दित, सन सन ऑफ पृथ्वी काइंड ऑफ। आम आम। नॉट सन, नॉट लिटरली सन ऑफ, लिटरली एनीथिंग रिलेटेड टू पृथ्वी, पृथ्वी संबंधी। ओके। पृथ्वी संबंधी इति पार्थिव। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉडी, एतत् शरीरम अपि पार्थिव देहम उच्यते, पार्थिव देहम इति, क्योंकि ये पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी के ही अंश हैं इसमें, भूमि जल वायु अग्नि आकाश। तो हम्म। जो भी पृथ्वी से उत्पन्न है, एनीथिंग बिलोंगिंग टू बॉर्न ऑफ पृथ्वी इज पार्थिव। ओके। एंड प्रभु जी, समीर इति विंड। किम? समीर इति विंड, आंग्ले समीर भाषा। इति एयर, हवा वायु। धीर समीर, ये। धीर समीर, इन गीत गोविंद इट कम्स, धीर समीर, धीर अनुगतम। समीर। एंड वेग, वेग मीन्स अर्ज, बट हियर इट आल्सो मीन्स वाचो फ्लो। वेगम मनसः क्रोध वेगम। वेग। इट इन हियर इट्स मूवमेंट। हाँ, मूवमेंट, वेग, उसकी गति, मूवमेंट। तीव्र गति भी बोल सकते हैं, या सिर्फ गति भी हो सकता है वेग। वेग मीन्स गति, एक तरह से। हाँ, यहाँ पे गति अर्थक ले सकते हैं, वेग मतलब गति। समीर वेग अनुगतम। ओके। अनुगतम इति अनु उपेंद्र, गम धातु, त त कृत प्रत्यय। अकृत, कृत आम कृत प्रत्यय। प्रत्यय। फॉलोड, अनुगता। आम। अनुगत्य, अनुगत, अनुगतम। बीइंग फोर्स्ड बाय। ओके। एंड प्रभु जी, समीर वेगानुगतम, इट इट इज तत्पुरुष समास, कृष्ण, कृष्ण पुरुष समास। विच वन? तत्पुरुष समास, समीर वेगानुगतम। समीर वेगानुगतम इति, समीर, समीरस्य वेगेन अनुगतम, समीरस्य वेगेन अनुगतम, तो यहाँ दो समास हुए। इसके अंदर दो समास है। एक तो हुआ हाँ। समीरस्य वेग, समीरस्य वेग, तो यहाँ पे आप हम्म। तत्पुरुष लगा लो। हम्म। और एक हुआ वेगई और वेगेन अनुगतम, तो यहाँ तृतीय वेग, तत्पुरुष, तृतीय तो षष्ठी तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष। तृतीय वायु के वेग के द्वारा अनुगत, तो समीरस्य वेगेन अनुगतम इति समीर वेगानुगतम। ओके। वेगई अनुगतम is तृतीय तत्पुरुष। वेगेन अनुगतम। वेगेन अनुगतम। ओके। एंड प्रभु जी, विभायते, विभाव्यते। निच, निच, निच निच। किम धातु? भू, भू सत्तायाम। ओके, it should have been bhav, but because of niche it became bhav. हाँ, तो नीचे लगने से वृष्णींद्र हो गया, अंतस्य वृष्णींद्र नृसिंह। हम्म। तो उद्वय से औ, औ आव बन गया भावी। और फिर आपको वो सूत्र याद है, आपने आई थिंक किया नहीं, वो आगे आएगा। नेर हर हो अनिटादो राम धातु के, तो वो ई का हर हो जाता है। फिर यक कृष्ण धातु के भाव कर्मणों, और ते ते आते अंते का ते, तो विभाव्य थे। भाव्यते, causes to become or appear, कॉजेज टू, कॉजिंग टू अपीयर। causing to appear. या एक्चुअली यहाँ कॉजिंग, कॉजिंग टू बिकम ही है, उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अपीयरिंग, रिजेंबलिंग। तो कॉजिंग टू बिकम ऐसा भी कह सकते हैं लिटरली। Okay.
एंड प्रभु जी प्रथम पदे यथा यथैवोदक पार्थिवेषु अ, अ, असौ अपि तत्पुरुष समास। उदक पार्थिवेशु। आम आम। अगर हम नीचे वर्ड टू वर्ड देखें सिनोनिम्स, तो हम्म। उदक इन वाटर लिया है, पार्थिवेशु को लिया है कि और इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। तो इस हिसाब से द्वंद्व समास लग रहा है रामकृष्ण, कि उदके, उदके च पार्थिवे च, या उदकेशु च पार्थिवेशु च, है ना, दो अलग अलग होंगे। लाइक प्रभु जी अहम ज्ञातुम् इच्छामि पार्थिव क्या चीज? related to earth, but it is not specified, but because of udaka it resembles liquid। हाँ, वो पार्थिव काफी एक जनरल टर्म है। पार्थिव के तो कई सारे अब अर्थ हो प्रभु जी सकते हैं। आवाज आ रही कट के आ रही है। है? ओके। अभी अच्छा। आ रही है। तो अब पार्थिव, पार्थिव पार्थिव के शब्द काफी जनरल शब्द है, किंतु हम्म, यहाँ पर इन्होंने पार्थिव को अदर लिक्विड से लिए। तो वो उदक है तो इसलिए, प्लस टीकाकार कमेंट्री में बताएंगे कि हाँ कैसे कैसे। पार्थिव के तो कई सारे अर्थ हो सकते हैं। ओके, जैसे लकड़ी ओके। को भी पार्थिव बोलते हैं, दारुण लकड़ी। हम्म। आई थिंक गीता में पार्थिव शब्द का प्रयोग हुआ है, जहां पर है ना वो तीन प्रकार के आवरण की बात हुई है। थर्ड फोर्थ चैप्टर, विच वन इज दैट? यथोल बणे, आवरण। यथोल बेण आवृतो, दैट वन। धूमस, अग्निर। थर्ड थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में, तो उसमें आई थिंक पार्थिव शब्द शायद से आया है। उसमें आया है, कहीं आगे पीछे आया है, या भागवतम में। आई ओके, थिंक भागवतम में वहां पर भी आया है, जब तीन गुणों की बात होती है, थर्ड चैप्टर फर्स्ट कैंटो, कि तमोगुण से ऊंचा रजोगुण है, रजोगुण से ऊंचा सतोगुण है। तो वहां पर श्लोक आया कि कैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से लकड़ी ऊंची है, लकड़ी से धूम ऊंचा है, धूम से अग्नि ऊंची है। वहां पर पार्थिव शब्द लकड़ी के लिए प्रयोग हो गया। थर्ड या फोर्थ ओके। चैप्टर है भागवतम का। तो इस तरह से पार्थिव के तो कई सारे अर्थ हो सकते हैं। यस प्रभु जी 3.38 आई थिंक ये ब्रीथिंग। उसमें नहीं है, भागवतम में है। मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था ये पार्थिव शब्द। इसमें नहीं, पार्थिव नहीं इसमें। ओके। एंड प्रभु जी एवं स्व माया, स्व मतलब ये स्व माया मेरी यहाँ माया। बाय वंस, अब यहाँ पे स्व मतलब जीवस्य, कि अपने अपनी माया के द्वारा रचित गुणों में हम फंसे हैं, उस अर्थ में। ओके जी सर। माया रचितेषु असौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो। राग मीन्स मेलो, अनुगतो फॉलोस। राग अटैचमेंट को भी बोलते हैं, आसक्ति, या मोह, मोह हो सकता है, आसक्ति हो सकता है। अटैचमेंट लिया है यहाँ पे, आसक्ति। ओके। फॉलोइंग आवर ओन अटैचमेंट काइंड ऑफ। हाँ, कह सकते हैं, अपने ही आसक्ति के परिणाम स्वरूप, उसके पीछे पीछे अनु। इसी, विमुह्यति। ये जो शब्द है रागानुगत, इसी को ही थोड़े सरल शब्द में हम बोल सकते हैं अनुराग, है ना। राग और अनुगत, तो हम सिर्फ अनु प्रीफिक्स को लें और उसको राग के पहले लगा दें, तो वही सिमिलर मीनिंग हुआ। इट विल हैव द सेम मीनिंग, अनुराग इति रागानुगत, सेम काइंड ऑफ मीनिंग। ओके। अनुराग अनुराग प्रभु जी इसका अर्थ था इंग्लिश में अटैचमेंट ही। हाँ, अकॉर्डिंग टू वंस अटैचमेंट, अनुराग। अकॉर्डिंग टू विमुह्यति। डन प्रभु जी। आयन उत्तर। एंड प्रभु जी अहम ज्ञातुम् इच्छामि लाइक इन तत्पुरुष समास द सेकंड वर्ड हैज मोर इम्पोर्टेंस। तो समीर समीरस्य वेगः इति समीर आपके वेगः। आपकी आवाज आवाज कट रही है प्रभु जी। आप माइक के सामने बोल रहे हो तो आ रही है, थोड़ा फेस इधर उधर कर रहे हैं तो नहीं आ रही। प्रभु जी अहम ज्ञातुम् इच्छामि
अस्मिन् समी समीर वेग तत्पुरुष समास जो है, समीर से वेगः, तो जैसे तत्पुरुष में इन वर्ड की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। प्रभु आपकी आवाज फिर वो कुछ तो गड़बड़ हो गई। वो रोबोटिक सी आवाज हो गई, कुछ तो ऑटो ट्यून लग गया उसमें। हरे कृष्णा। बताइए। प्रभु जी, जैसे तत्पुरुष समास में सेकंड वर्ड का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो फिर जैसे समीर से वेगः इति समीर वेग, तो इस सब में जो वेग है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है means। समीर वेग में वेग की इंपॉर्टेंस है, वेग अनुगतम में अनुगतम की इंपॉर्टेंस है। तो पूरे अगर हम इसको देखें तो अनुगतम इंपॉर्टेंट है। ओके, डन हम्म, प्रभु जी, अस्तु। ठीक है। तत्पुरुष। ओके, सो रिज्यूम ऑन सैटरडे देन अदर 30 सूत्रस। प्रभु जी, प्रश्नमस्ति। अभी मेरी एक दूसरी क्लास है। चलो आप पूछ लीजिए। प्रभु जी, ये जो बाकी के प्रकरणम है, आ, उसमें ये आख्यात की आवश्यकता होती है इतनी या नहीं? आख्या तो पूरे ग्रामर का स्केलेटन वो है ना, आधार है। आप बस इस एंगल से सोचिए कि भले वो धातु रूप दिखे या ना दिखे, बाकी सब तो धातु से ही बने, चाहे वो शब्द भी क्यों ना हो। यस प्रभु जी। तो if you see from that point of view, Akhyat is actually the backbone, the root of the whole of grammar, whole of Sanskrit. तो इवन इफ यू थिंक कि अरे इतने धातु नहीं दिखते, क्योंकि देखिए ना, आप नॉर्मल सेंटेंस भी बोले, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, बंगाली हो, संस्कृत हो। अगर मान लीजिए कि आपने एक सेंटेंस बोला, उस सेंटेंस में यू हैव लाइक लेट्स से 20 वर्ड्स, तो आउट ऑफ दोस 20 वर्ड्स एक या दो शब्द होते हैं विच आर वर्ब्स, ऑल अदर वर्ड्स आर नाउन्स, एडजेक्टिव्स, विच आर नॉन वर्बल वर्ड्स। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वर्ब ज्यादा नहीं है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वर्ब्स का यूजेज कम होता है क्योंकि नेचुरली वर्ब्स कम बोले जाते हैं, बाकी सब चीजें ज्यादा होती हैं। आप देखो, हम्म, कारक हमारे पास 6 हैं, विभक्ति 7 है, जी। वर्ब एक ही है, अगर हम वैसे देखें तो। हम्म, पर उन सबका जो संबंध है वो क्रिया संबंध विशेषी कारकम, उन सबका संबंध क्रिया के साथ है, तभी उनका यूटिलिटी है, वरना उनकी भी कुछ यूटिलिटी नहीं रहेगी। ओके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ब्स का यूजेस थोड़ा कम होता है, इनके जो रूप होते हैं। जैसे विभाव्यते, यहाँ देखो, विभाव्यते और विमुह्यति दो ही है, जी। बाकी सब तो नाउन्स है देखा जाए तो। हाँ। पर इनके बिना बाकी सब इनकम्प्लीट है। तो इसलिए दोनों दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि इनकी यूटिलिटी है, प्लस इन्हीं से ही सब कुछ बनते हैं। ज्योति ही, उदक, पार्थिव, ये सारे जो शब्द हैं कहाँ से बने? ये धातुओं से बने। समीर, माया, रचित, ये सब धातु से बने। गुण, रागानुगत, ये सब धातु से तो बने। रंज हाँ। रागे, कमल गतौ, गुण भी धातु है, रच धातु है, तो माँ धातु है। इस प्रकार सब धातु से ही बन रहे हैं। इर इर धातु है, इर प्रेरणा या इर। तो ज्युत ज्युत धातु है। तो इसलिए वो नॉलेज भी हमें गेन होती है धातु पढ़ने से। ठीक है, सैटरडे को कंटिन्यू करते हैं। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। जय जय, पुनर्मिलामः। धन्यवाद। हरे Krishna कृष्ण। Guru. हरे कृष्ण।